In this captivating episode, our friend Sumit will be sharing his valuable life experiences and the numerous Additionally, you will have the opportunity to learn about mountain climbing, health benefits it can provide. He will share essential tips on how to become actively involved in physical activities. So learn and enjoy the episode. Hi guys, my name is Komal Bajaj and welcome to the episode number 4 of Bliss of Life. Well, in this episode you will learn about a lot of adventure sport and you will learn about a lot of things general in life, and the guest we have is a very special friend of mine and you will love this conversation. आपको बहुत मजा आने वाला है. You should watch it with your family, watch it with your friends. I'm sure you will love this conversation. So thank you so much for watching this episode and I hope you will love it. Lots of love. Thank you. Watching, guys. Hi Sumit, how are you? Hi Komal, I'm good. How about you? I am excellent. Thank you so much for asking. And thank you so much for coming to our show. It's a pleasure to have you over here. Likewise. Thank you so much. I wanted to know, as our channel name is A Bliss of Life, I would love to know what is your bliss of life? Okay, I think I can explain it in one word. It's climbing, or rock climbing, I would say. That's my bliss of life. That's something that motivates, and that's something I can resonate with. And आपको ऐसा क्यों लगता है, like it resonate you much? Did you had a passion for this from the starting, or it just like builds up by time? Not exactly. So I was an extrovert person right from the beginning. As a childhood, in my childhood, I used to play every sports I can play. It does not matter. Like I used to play cricket, I used to play football, I used to play badminton, any sports, that volleyball, basketball, you just name it, I want to be there. In fact, I remember that once I met a guy who came from Singapore and asked him what's the most famous sports in Singapore. And he said, it's baseball. I was like, okay, today we'll play baseball. And I remember having a cricket wicket using as a baseball bat and the ball, and that's it. So I was all into sports right from the beginning, but it changed. As I went further, I was like, there was something about rock climbing. So I was always into extreme sports. I wanted to do that. There's like, I wanted to do skydiving. When I used to see these things on television, I was in love. Like, okay, this is something I want to do. This is something seems exciting. And I kind of had a checklist with me that, okay, I'll do these things once in my lifetime, and it's done. And that was I would say that's what motivated me to rock climb first time. Okay. That's it. I thought one time I'll go for rock climbing, I'll do it, and that's it. It's over. And it's been 14 years and I'm still rock climbing. And that's so great. People just can't find their passion. I'm so glad you found it. Do you feel whenever you're doing rock climbing, what do you feel when you're doing it? Like, is this something, you're very close to that, obviously you like it. So what connection do you feel, in common? What common things you find in that? So I would say in terms of common thing is, I love problem solving, and any climbing you do, actually we call it a problem solve. Like, okay, this is a problem we solve. Any climber you ask, okay, what you working on? What's your project? This is the project, this is the problem we are working on. And there are a lot of permutation and combination, and that's what I like about this. Was where I see myself that, okay, even in my professional work, even in my studies, I always want to solve the problem, and that's why I wanted rock climbing. Apart from that, I have been a physically active guy. I've been a lot of active, as I mentioned before, and rock climbing is a kind of sports that keeps you active no matter what you do. It's kind of something gets you involved there. Do you are you like big fan of like mountains? You love mountains? Yeah, being a Pahari guy, like coming from mountains, yes, I do love mountains. I'm like crazy for at one point it was my dream in my childhood, I would say, in teenage also. At certain point when I was working, that I don't want to live in Delhi, I just want to be in the mountain, and that's where I want to spend my rest of my life. It still is. At some point of time, I want to not live in the big city like Toronto, Vancouver. I want to live somewhere in the outskirts, in the mountains. So yes, I do love mountains. So it's I don't know if you are a spiritual person, do you like meditate and all? Like, do you feel like it is kind of a meditation for you when you do a rock climbing? I'm not a very spiritual person.
I believe in certain things, but no, I wouldn't call myself a spiritual person. But yes, when I'm in rock climbing, I don't think about what's meditation. When you're in meditating, you don't think about anything else. Exactly. And in modern world, no one can live without phone, right? I don't even check my phone once when I'm climbing. Like screw with it. No matter what's happening, it's there. It's in my bag. And there was a time. Now I bring my phone to my gym because I want to time something like later on the evening. But otherwise, I used to leave my phone in my house and go to rock climbing and come back and then check it. So I was in that zone that I don't care who is calling. I don't care. I'm rock climbing. No one should disturb me. So like very focused when you're rock Yes. climbing. Yeah. And how do you find these places? Like do you like search, like koi special search करते हो and you just like go like that? So okay, so here rock climbing in everywhere. It starts with gym rock climbing. These are gyms, right? Okay. So when I started here in Toronto, I was looking for places in rock climbing. I was like, okay, rock place to rock climb near me, and luckily for me, there was a place literally 2 blocks away from my home. Okay. But it took me 4 months still to be, not even more than like 6 months to be there. I was like being hesitant. I didn't climb for much during COVID and much before that also because of my MBA and a lot of things together. But I was sure that I was gonna go there, but I wasn't sure when. So at one day I was going for my grocery and like, okay, let's just go into the rock climbing gym on the way. And I was like, okay, I'm taking the subscription, I'm taking the membership, and now I'm here. So in the starting, like as you said, in the childhood, you used to play a lot of sports, other sports. So आपकी like family में like they used to push you कि you know do it. They used to like कितना खेलेगा घर आ जा. It's like बस कर ठीक पढ़ ले. Like okay, that's family. Like we come from a family actually. A lot of us, like all my friends, everyone, like we see sports not as an achievement but as a thing, an extracurricular activity. They motivate us to do that, being healthy, that's okay, but still you still have to focus on the your study part, yeah. Exactly, yeah. So I remember like I think it was during my 12th board, I used to go in the morning to play one sport, in the evening one sport, and the night 3 sports. And my mom is like, when you gonna study? Like, you know, you're playing all the time. And I'm like, I'm studying. Like rest of the time, I'm not playing. I'm studying. Actually, no. But you go in the morning, then you go in the evening, late evening, and then in the night also. You're literally playing all the time. So I don't know. I like being active. That was me all the time. So like, but like, does it ever affected your studies while you were like so engaged in? To be honest, so yes and no. So when we see that, you know, I realize at this point of time, if I could have changed my things, there's no point of studying hours and hours of this. It's mostly about how focused you are. If you're not focused, there's no point. Like even, the thing you can achieve in 2 hours of focus, you cannot achieve in like 12 hours not being focused. So it's better to be focused and dedicate your 2 hours rather than counting the hours that, oh, I study for 12 hours, I study 40. That does not make any difference. I wouldn't say that it affected my study. I was the same student throughout my life. I was like above average, I would say. I was decent, I was sincere, and above all, I've been disciplined person. Like I've been disciplined, and even till now, I do like, and anyone who knows me, I have strict routine. Like literally, no one can make me go out of that routine, no matter what. So I want to ask you, if you, अगर आपको introduce करना है like for rock climbing, how will you introduce that to any like normal person? Okay, I've tried this multiple times. I strongly recommend for anyone who's young, who, like especially kids, it's the best sport. It's an interesting sport, but again, you need to connect with it. That's a sport. Like, you know, no matter what, like if you are not connecting with it, that's okay. But everyone, I believe, should try it. So, कोई भी अगर rock climbing करना चाहता है, I would say he or she should come with me. We can go to the gym, and I will show them how to climb and how to do the basic stuff. So I'll tell you an interesting story also about a guy who thinks that वो जो सोचता था कि मैं बहुत strong हूँ, and वो मेरा ऑफिस का फ्रेंड था, और he used to say कि कहता था कि अरे मैं पुशेस मारता हूँ, मैं बचपन में किसी से मेरी लड़ाई हुई थी, मैंने एक गुंडे को पंच मारा और वो डर गया. मैंने कहा ओके, मैं कहा चल मेरे साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए आ, और वो आया मेरे पास रॉक क्लाइंबिंग के लिए. मैंने कहा ठीक है, एंड मैं अपने सारा सेशन कंप्लीट करके बैठा था क्योंकि एज ए सेड मैं बहुत कमिटेड हूँ, तो मैं अपना सेशन नहीं करना चाहता था क्योंकि वो पहली बार आ रहा है. ऑब्वियसली उसका लेवल अलग है और मेरा लेवल बहुत अलग है, तो आई नो. तो मैंने उसको बुलाया और मैंने उसको कहा चल रॉक क्लाइंबिंग कर. सो वो पहली 1-2 बार वो चढ़ गया किसी तरह. 2 बारी के बाद उससे कुछ पकड़ा भी नहीं जा रहा था, ठीक है.
एंड वो कह रहा मेरे हाथ भी फील नहीं हो रहे हैं, और मैंने कहा बट तू तो पुशअप्स मारता है, तू तो बहुत स्ट्रांग है, एंड वो कहता नहीं ये डिफिकल्ट है, ठीक है। अब तो फिर उसके उसके बाद उसने मेरे को एक्सक्यूज दिया क्योंकि मैंने ना मॉर्निंग में पुशअप्स मारे थे, तो चल इसलिए मैं थक गया था, ठीक है, तो मैं रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर पाया। तो मैंने कहा अगर ये लॉजिक है मैं तो रोज मारता हूँ पुशअप्स, मैंने कहा तो ये कोई लॉजिक नहीं है। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर सकता, इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि मैं मेरी फ्रेंड्स आती हैं जिनके है, एंड बीइंग अ गर्ल आप उनको देखोगे तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग कई बार लगती नहीं है फिजिकली, बट जब उनको आप रॉक क्लाइंबिंग करते देखोगे आप मेस्मराइज हो जाओगे कि वो कैसे कर रही हैं। मतलब मैं आपको अपना इंसिडेंट खुद बताता हूँ, मैं पहली बार जिम में गया, मैं एक लड़की को देखा वहाँ पे, तो I was in love, not because of the beauty and everything. I was in love with the fact that she was doing pull-up with 45 pounds weight on herself. Oh my God. And I was like, ये कैसे कर सकती है ये, मतलब मैं लिटरली उसको 1 मिनट तक ऐसे ही देख रहा था, फिर मुझे लगा बहुत क्रीप आउट हो चुका है तो अच्छा नहीं है, तो चलो। बट तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करी। अब मैं खुद करता हूँ वेट लाइक 90 पाउंड्स 100 पाउंड्स अपने वेट लगा के पुलअप मारता हूँ, बट उस लड़की को पता भी नहीं, मैंने कभी बात भी नहीं करी उस लड़की से, बट उसने मुझे मोटिवेट किया। यू गेट इट, मैंने उसको देखा कि ये कर रही है और इतना अच्छा कर रही है, ठीक है, मुझे ट्राई करना चाहिए। और मैंने शुरू किया 10 पाउंड से, फिर 20 पाउंड, 50, 100, तो अब मैं कर सकता हूँ, तो थैंक्स टू दैट गर्ल। बट ये चीज़ें हैं, तो कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहेगा, मैं बोलूँगा कोई भी स्टार्ट कर सकता है। आपको इसको एक जर्नी की तरह चलना है। आपको कभी भी कोई फिजिकली ये पहलवान बनना चाहता है, स्ट्रांग बनना चाहता है, आप एक दिन में खाना खा के स्ट्रांग नहीं बनते, ये एक प्रोसेस है। तो पहली दिन आप 1 बार या 2 बार ट्राई कीजिए, दूसरे दिन थोड़ा और कुछ दिन का ब्रेक लेके फिर कुछ और थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा और धीरे धीरे इस लेवल को चैलेंज योरसेल्फ। एग्जैक्टली, यू शुड नो योर लिमिट। आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, उससे ज्यादा क्रॉस मत कीजिए, बिकॉज आइडिया है कि आप वापस आओ। इट शुड बी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग कि आपको वापस आए। आपको इस हालत में नहीं पहुंचना कि आप 10 दिन तक बेड में पड़े रहो, उसके बाद हो गया बस मेरी जिंदगी का मकसद पूरा। नो वन वांट्स टू डू दैट। तो मैं यही चाहूंगा, क्या कहते हैं कि कोई भी ट्राई कर रहा है, ही और शी शुड कम, एक बार ट्राई करे, उसको देखें, वो देखते हैं कि कैसा लगता है, कैसी फीलिंग है, आर दे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आर दे एंजॉयिंग इट। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे ना तो कुछ भी नहीं, तो काम भी अच्छा नहीं होता। आप खाना भी अगर आप बनाना एंजॉय नहीं करते ना तो वो खाना भी अच्छा नहीं बनता। तो इट्स ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। आप फील करते हैं, आप मजा आता है। और मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगा, रॉक क्लाइंबिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल जिम्स बॉय, बिकॉज नॉर्मल जिम में जब जाते हैं, आप में से कोई भी जाता है तो आप हेडफोन्स लगाते हैं और अपने जिम में फोकस होते हैं। रॉक क्लाइंबिंग ऐसा नहीं है। रॉक क्लाइंबिंग में आप सबसे बात कर रहे होते हैं। अब मैं बहुत प्राउड से बोलता हूँ, मैं एटलीस्ट 40% उनसे जिम को जाता हूँ। मैं जाता हूँ तो मैं एटलीस्ट 40% लोगों को हाय बोलता हूँ, हाय कैसे, क्या चल रहा है और कैसे, मतलब इट्स लाइक ऑल कन्वर्सेशन गोज ऑन। पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटी आते हैं वहाँ पे। बहुत कम इंडियंस हैं, इंडियंस इतने नहीं है, शायद 1 या 2 होंगे मेरे को इंक्लूड करके, बट इतने लोग आते हैं वहाँ पे एंड दे ऑल आर, इट्स अ वेरी फ्रेंडली कम्युनिटी। और अगर आपको कुछ नहीं आता है ना और आप किसी एक्सपर्ट को देख के जाते हैं, पूछते हैं, दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू। तो रॉक क्लाइंबिंग इज आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा एक सोशल गैदरिंग बनती है आपकी। मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे MBA के अलावा या फिर मेरे वर्क के अलावा, तो वो मेरे रॉक क्लाइंबर्स हैं जिनके साथ मैं ड्रिंक्स पे जा सकता हूँ, डिनर पे जा सकता हूँ, तो वो मेरे कैन आल्सो हैंग आउट लाइक एग्जैक्टली परफेक्ट। आपका आई वांट टू नो कि जब आपने पहली बारी रॉक क्लाइंबिंग करी थी, लेट अस नो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट। आई रियली वांट टू नो। सो आई डोंट नो, आई वाज ट्रैवलिंग ऑन माय बाइक और मैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए देख भी रहा था। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी एक चेकलिस्ट थी कि रॉक क्लाइंबिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, ये सब करना है मुझे लाइफ में एक बार बस करके ना। वो कहते हैं 30 things to do before you die. So I was like, okay, let's just do one, and I can say that, you know, in my resume also, rock climber, ठीक है, एक बार करके। तो मैं सर्च करता रहा गूगल पे, तो मेरे को पता चला एक फेडरेशन, बहुत ढूंढने का, इट वाज नॉट इजी बिकॉज रिमेंबर इट वाज 2010, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता था उस पर, और वो भी दिल्ली में इतना नहीं था। आई थिंक US नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा है, बट इंडिया में इतना काफ़ी चीज़ें, और खासतौर से रॉक क्लाइंबिंग अब ऑल। तो मैं ढूंढता रहा, तो मुझे मिला फाइनली कुछ फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में कि एक फेडरेशन है, इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन, जाओ वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया, तो 4 लोग बैठे हुए थे, एंड आई थिंक वो ब्रेक टाइम था उनका, क्योंकि इट वाज लाइक 8 से 12 और फिर शाम को 4 से 8, सो बिटवीन 12 to 4 इट वाज ब्रेक टाइम। और जब वो वहाँ पे क्या कहते हैं ब्रेक चल रहा होता था, तो मतलब वो कैजुअली बैठे थे,
और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने उनसे बात करा कि क्या करना पड़ेगा रॉक क्लाइंबिंग के लिए, कैसा है, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो जो इंचार्ज था बोलता आओ पैसे दो और चढ़ जाओ। ठीक है, मैंने कहा ओके, और कुछ नहीं रखें, कहता हाँ यही करना है। मैं कहा अच्छा बस आओ पैसे दो चढ़ जाओ, कहता हाँ। तो मैंने बोला कितने बजे आ सकते हो, तो कहता 8 बजे से। तो मतलब वो फनी आदमी, वो लड़का ही था, वो जोक मार रहा था, तो उसने उसको बोला कहता हाँ 4 घंटे की टाइमिंग है। तो मैं ठीक है, कहता आ जाना। बट जब मैं जाने लगा ना, तो एक दूसरे एक बंदे ने नोटिस किया कि मैंने ना सैंडल्स पहने हुए हैं, तो उसने बोला जूते पहन के आना। ठीक है, तो आई वाज लाइक ओके जूते पहन के आना, कहता हाँ स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आना। मैंने कहा ओके। तो मैं उसके बाद क्या कहते हैं आया स्पोर्ट्स शूज़ पहन के, और मैं मतलब 1-2 बार किया, मतलब क्योंकि मेरा ऐसा था, मैं बहुत जिम करता था, तो मेरा था मंडे टू सैटरडे जिम एंड संडे को जाके रॉक क्लाइंबिंग करेंगे। अब वहाँ पे जब मैंने रॉक क्लाइंबिंग करनी शुरू करी, बिकॉज आई वाज स्ट्रॉन्ग, बट मैं स्ट्रॉन्ग था बट नॉट रॉक क्लाइंबिंग स्ट्रॉन्ग। एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना एक अलग चीज़ है, एक रॉक क्लाइंबिंग स्ट्रॉन्ग होना एक अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। बिकॉज आप एक रॉक क्लाइंबर पर बॉडी पाउंड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द अदर गाय। और इसके आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे कि एक रॉक क्लाइंबर है वो पूरे वेट उठा रहा है जो उनसे 3 गुना हैवी बॉडी बिल्डर्स नहीं उठा पा रहे, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एनीवे, तो मैंने किया, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कहा चलो उसी सर्कल में वहाँ पे जब मैं रेगुलरली रहने लगा, तो मेरे दोस्त बनने लगे, और वो दोस्त इतने गहरे दोस्त बन गए कि अब 14 साल हो गए, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। मैं उनकी शादियां अटेंड करी है, उनके साथ स्की ट्रिप अटेंड करी। ये स्कीइंग करना भी मेरे एक पैशन में था, तो वो भी मैंने उनके साथ किया। तो ये धीरे धीरे बॉन्डिंग बनती चले गई कि चलो आओ, तो एक फ्रेंड सर्कल होगा कि अगर सैटरडे को या फ्राइडे को किसी के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, दीज आर द पीपल। और एक तरह से अच्छा भी हुआ, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस करी कि रॉक क्लाइंबिंग में जिन लोगों से आप मिलते हो, जो सर्कल आपका बनता है ना, वो एक क्वालिटी पीपल होते हैं। मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड, और आप उनसे कुछ सीखते ही हो। मतलब मैं I come from a middle class family and come from place where my mom and dad both are working, and I have a very specific friend circle. But that friend circle was very different from my existing friend circle. वो ऐसे लोग थे कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो top of the top schools के pass out. Some 3 of them owned their own business. Someone is HR director. Someone is a marketing director in some company. तो वो एक circle एक ऐसा था जिसने मुझे नॉट जस्ट पर्सनली बट प्रोफेशनली ग्रो करने में एक बहुत अच्छा मेरे को मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। That's great. तो रॉक क्लाइंबिंग का सोचा कैसे, लाइक यू नो आई वांट टू डू अ रॉक क्लाइंबिंग, या मेरे को करना चाहिए? हैव यू एवर थॉट लाइक डूइंग इट प्रोफेशनली? कभी सोचा आपने प्रोफेशनली करने का? एक्चुअली प्रोफेशनली करना इतना, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। क्रिकेट का सबसे बढ़िया बैट्समैन हम आज तक बोलते हैं सचिन तेंदुलकर है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सचिन तेंदुलकर का जो बेस्ट शॉट है ना, शायद मैं अगर 1000 बार मारूं तो शायद मैं एक बार कॉपी कर सकता हूँ। हो सकता है कि मेरा तुक्का लग जाए और वो हो जाए। रॉक क्लाइंबिंग में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो वो चढ़ते हैं ना, मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ओके, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये आपको इस चश्मे का ये स्टिक दिख रही है ना, कई बार एड्ज इतनी बड़ी होती है और इस पे वो पूरी बॉडी का वेट लटका के लटके हुए हैं, और वो 300 फीट ऊपर हैं हवा में। इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट, एंड इसमें आपका ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप 99% या आपको 100% होना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अदर स्पोर्ट्स बेकार हैं या अदर स्पोर्ट अच्छे नहीं है, मतलब मेरे लिए ये दीज एथलीट्स आर लाइक गॉड्स। बट रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको इवन इफ यू आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब सचिन के कई शॉट्स विराट कोहली कॉपी कर सकता है, विराट कोहली के कई शॉट में भी रोहित शर्मा ऐसा हो सकता है कि अदर पीपल कर ले। बास्केटबॉल में भी मे बी लेब्रॉन जेम्स के कई शॉट, माइकल जॉर्डन के कई शॉट्स लेब्रॉन जेम्स कर ले, पॉसिबल है। बट वो जो चीज़ करते हैं दूसरे का करना इतना आसान नहीं है, और वो प्रैक्टिकली हवा में चढ़ रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनके आस पास भी आता हूँ। मतलब आई एम अ गुड क्लाइंबर, मैं 1 साल के अंदर अपने जिम में उस लेवल पर हूँ कि मुझे काफ़ी लोग जानते हैं कि अगर वो देखते हैं मुझे कि दे नो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर। बट प्रोफेशनल एक अलग चीज़ है, वो एक गेम ही अलग है। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उस लेवल पे आऊँगा, और मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में रॉक क्लाइंबिंग इज़ अ यंग मैन स्पोर्ट्स। वाई? बिकॉज जो लोग इस आज की डेट में जीत रहे हैं वो 4 साल की उम्र से शुरू करते थे, और आज वो 18 या 19 साल के हैं ना, वो जीत रहे हैं, ठीक है। और जो मैं मेरे लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाइंबर है, इवन वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत पा रहा, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट, इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट, और ये बहुत फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है।
तो आपने जैसे बोला इस चीज़ के लिए आजकल एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो हेल्थ कॉन्शियस, राइट? यू सेड दैट लॉट ऑफ डिसिप्लिन you need. What will be the one advice you will give to like common person to be disciplined, to go to gym? Like what that one push you'll give कि यार करो, you know, you should do it. You should do one physical activity in your life. Just get out of the home. This is the most difficult thing I'm telling you. मतलब इट्स अ पैराडॉक्स. एक स्टडी भी है कि आपके जिम में जाके वर्कआउट करना इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द होम. लाइक वंस यू गेट आउट ऑफ द होम, दैट्स इट, दैट्स द ओनली पुश यू नीड. वंस यू गेट आउट ऑफ द होम यू विल गो टू द जिम. मतलब अगर आप इस लेवल पर हो ना, ये मैं जानता हूँ ये बहुत चैलेंज, यहाँ तक पहुँचना है. चैलेंज क्या है कि आप उस लेवल तक पहुँचो कि आप घर से बाहर निकलो. वंस यू गेट आउट द होम चैलेंज कम होता चला जाता है. यू स्टार्टेड वॉकिंग, मतलब अब क्या कर सकते हैं, आप सोचते हो घर से तो निकल ही गए तो थोड़ा चल लेते हैं. अब थोड़ा चल के फिर लगता है अब इतना चल लिए 5 मिनट और चल के जिम ही चल लेते हैं. अब जिम पहुंच गए तो अब यहाँ पहुंच गए तो कुछ कर ही लेते हैं. सो दैट्स इट. सो आई बिलीव यू शुड मेक अ डिसिप्लिन दैट ओके, नो मैटर व्हाट, गेट आउट, वेयर योर शूज, गेट आउट द होम. दैट्स द बेस्ट मोटिवेशन नो मैटर व्हाट. लाइक अगर आप, इट्स नॉट जस्ट रॉक क्लाइंबिंग, आप कुछ भी करते हैं, जिम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, जस्ट गेट आउट ऑफ द होम. आप घर से निकलेंगे ना, मतलब किसी को भी पसंद नहीं होता अपना काउच छोड़ के टीवी ना देखे. किसको पसंद है? मतलब टेक्निकली मोहम्मद अली ने बहुत बड़ी उनका था कि ही हेटेड एवरी आवर ही ट्रेन्ड इन हिज लाइफ, बट स्टिल ही डिड दैट बिकॉज दैट्स व्हाट मेड हिम ग्रेट, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग टू लर्न. बट काफ़ी चीज़ें मतलब मैं एंजॉय करता हूँ, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है. मैं अभी कल रॉक क्लाइंबिंग के गया था, मेरा 1% भी मन नहीं था. मैं गया हूँ और मैं बता रहा हूँ कि आज नहीं हो रहा, और कह रहे ओके, तो लोग कह रहे हैं अच्छा आज हाई ग्रेविटी डे है, तो हमारे रॉक क्लाइंबिंग में कहते हैं व्हेन यू आर नॉट डूइंग गुड दैट्स अ हाई ग्रेविटी डे, और होते हैं तो लाइक हाँ, बट मैं कर रहा हूँ जस्ट टू डू इट, आई एम जस्ट डूइंग इट, दैट्स इट. बिकॉज मैंने मंडे नहीं किया था तो मैं 2 days इन अ रो मिस नहीं करना चाहता. दैट्स इट. एक्चुअली दिस इज ऑल्सो गुड एडवाइस कि अगर आपका कुछ हैबिट है, नेवर मिस 2 days इन अ रो. एक्चुअली दैट्स वर्क वंडर. लाइक आप एक मिस कर दिया ठीक है, बट कोई बात नहीं. हाँ, बट 2 days इन अ रो कभी मिस मत करो. द मोमेंट यू मिस 2, आपका साइकिल ब्रेक हो गया. दैट्स इट. वैसे मैंने एडवाइस अपने लिए भी मांगी थी कि समटाइम्स आई एम वेरी लेजी. आई नीडेड दैट मोटिवेशन, सो थैंक यू फॉर दैट. You're welcome. मेरा एक और सवाल था कि व्हेन यू लाइक आपने बोला ना 1 या 2 बारी, आप कितनी बारी जाते हो इन अ वीक? लाइक सो I used to go like 4 days a week initially. मैंने 5 बार भी गया हूँ वैसे. तो मैं जब एक्चुअली मेंबरशिप भी लेने गया था, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला अच्छा अगर मैं ये कितने घंटे रहना है, मतलब मेरे को 2-3 घंटे बाद बोलोगे आप जाने के लिए? तो वो बोलते मैन तुम सुबह आओ शाम को आओ पढ़े रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इट्स लाइक दिस. तो मैं कहा ठीक है, तो बहुत सही चीज़ें मैं करता हूँ. और मैं फिर मैं जाता था 4, कई बार 5 दिन में गया हूँ स्टार्टिंग में. बट द मोर उस टाइम पे क्या था, मैं क्वांटिटी पे ध्यान दे रहा था, क्वालिटी पे नहीं. देन आई स्टार्टेड फोकसिंग क्वालिटी कि जो सेशन होगा इंटेंस होगा, मैं ये चीज़ें करूँगा जो चैलेंजिंग होगी, जो मेरे को पुश करेंगी. प्रॉब्लम क्या है, जब आप ये करते हो ना, आपकी बॉडी ब्रेक डाउन, की बॉडी टूटती है. यू नीड रिकवरी टाइम, और रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मेरे को रिकवरी तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं रेगुलर जाऊँ, तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत है. मैं अगले दिन जा तो रहा हूँ, बट मैं क्लाइंब भी अच्छा नहीं कर रहा, ये मेरी क्लाइंबिंग भी इम्पैक्ट कर रही. मैं इसलिए जाना चाहता था ज़्यादा, क्योंकि मेरी सोच था कि मेरी क्लाइंबिंग इंप्रूव होगी, बट वो इंप्रूव तो हो नहीं रही. इनफैक्ट मैं बुरा ही हो रहा हूँ, मुझे दर्द भी हो रहा है बॉडी के में पेन होता है. तो मैंने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स जस्ट डू वन थिंग, जो क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, 3 दिन जाते हैं और अपनी रिकवरी पे ध्यान देते हैं. तो मैंने इस पे भी काफ़ी चीज़ करी. मैं वेट लॉस करने के चक्कर में था, तो मैंने खाना भी बहुत रिड्यूस किया था. मैं मतलब एंड आई रिमेंबर मैं बेड पे लेटा हूँ और मेरा बैक पेन हो रहा है, मेरी आर्म्स पेन हो रहा है, मतलब आई वांट टू रिड्यूस वेट, बट यू नीड प्रोटीन ऑल्सो, यू गेट इट, यू नीड टू फीड योर बॉडी. और उसके बाद मैंने अपना प्रोटीन इंटेक बहुत बढ़ाया. लाइक अब तो मैं काइंड ऑफ प्रोटीन पे ही जिंदा हूँ, बट मैं आई मीन आई एम टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन नाउ. बट उस पर टाइम तो ऐसा था कि बॉडी पेन कर रही है, बट इट्स लाइक इट्स नॉट हेल्दी. सो मुझे था कि चलो बॉडी रिकवर भी होनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट 3 days a week. You said डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, बिकॉज यू हैव टू बी लाइक यू नो एनर्जी के लिए. तो आप कैन यू जस्ट शेयर योर ओन डाइट फॉर द रॉक क्लाइंबर्स जो पैशनेट है इस चीज़ के लिए? मेरी डाइट वैसे बहुत बोरिंग है, मैं हमेशा एक ही चीज़ करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ. और एक्चुअली बेस्ट बात ये कि ये बहुत चेंज नहीं होती. मैं इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन मैं सेम चीज़ 10 साल खा सकता हूँ, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इफ़ आई से आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो मैं मॉर्निंग में एक ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ. उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है एनीथिंग बिटवीन 11 and 12. तो उसमें मैं
4 boiled eggs and a grilled cheese and protein shake. That's my morning. Then I have a evening meal, like I would say 4:30 or 5. On that, it's usually chicken, some form of meat with maybe rice or something. So some form of meat. And later on the evening, अब मैंने develop किया कि initially I used to take protein shake after my workout, like every day, even I'm not doing gym or anything. But अब मैंने क्या किया कि मैं I take oats, उसमें peanut butter and protein का scoop. So it's like protein का scoop मिला के, so it's like मेरे को ऑलमोस्ट मैं 125 ग्राम प्रोटीन मैं कंज्यूम कर रहा हूँ इसी के थ्रू. तो यही चीज़ मैं रोज़ खाता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. और फॉर मी बोरिंग इज़ गुड, लाइक आई डोंट वांट फैंसी मीट और एनीथिंग. मुझे कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं बहुत नॉर्मल रखता हूँ. अब मेरे को एक लीन शेप चाहिए जो मैं उसके लिए. I think so boring is sexy, as Virat Kohli says. Yeah. It's, you have to be very disciplined if you want to achieve that part of it. Exactly. Right. 100%. So I think so, especially in this thing, you know, as you mentioned about your diet, I want to know that like अगर आपने किसी को explain करना that how much macros they should, you know, take it for that. Okay. Yeah. Got it. So actually depends on individual for sure. मतलब हर किसी की personal requirement होती है, body, size, age, gender, like what sex you are from. So काफ़ी चीज़ें. और मैं मतलब पहले इतना प्रोटीन नहीं फोकस, मैं लेता था बट नॉट दिस अमाउंट. तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ पॉलिश गर्ल. तो एक बार हम सब पूरा रॉक क्लाइंबिंग का ग्रुप, वी वेंट फॉर आई थिंक इट वाज अ बर्थडे पार्टी समवेयर इन अ रेस्टोरेंट. एंड शी काइंड ऑफ टुक 20 मिनट उसने लिए वेटर से डिस्कस करने के लिए कि उसके बर्गर में कितने ग्राम प्रोटीन होगा. एंड माई फूड वॉज ओवर एंड शी वाज स्टिल डिस्कसिंग. एंड आई एम लाइक कि यार ये क्या है. तो फिर वो बोलती थी, मतलब इट वाज ऑब्वियसली अ जोक दैट यू नो आई टेक लॉट ऑफ प्रोटीन, आई कैन एनी टाइम किक योर आस. सो एंड शी वाज स्ट्रांग फॉर श्योर. शी इज ऑलमोस्ट एज टॉल एज मी, प्रोबेबली टॉलर, एंड फिजिकली स्ट्रांग. यू कैन सी लाइक वेरी स्ट्रांग. तो दिखता था. तो फिर मुझे ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर लगा कि येस शी टेक्स गुड केयर ऑफ हर हेल्थ एंड एवरीथिंग, शी स्ट्रांग. एंड मुझे याद है कि वो मेरे साथ मतलब आफ्टर क्लाइंबिंग वो उसी जगह ट्रेन भी कर रही थी जहाँ मैं ट्रेन करता था. तो आई नो शी स्ट्रांग, शी इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हेल्थ. सो आई रियलाइज कि मुझे भी करना पड़ेगा. मुझे भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए. तो मैं इनिशियली सिर्फ एक स्कूप ऑफ प्रोटीन लेता था और एग्स हो गए तो हो गए, 2 अंडे, मतलब इट्स लाइक नॉर्मल डाइट राइट, ना कि कुछ नहीं. फिर मैं किसी से पूछा भी कि हाउ मच प्रोटीन यू टेक, उसने मैं तो 2 स्कूप. तो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मुझे ये सब ऐड अप करके देखना पड़ेगा कि ये कितना प्रोटीन बनता है और कितना मिसिंग है, और मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ टू ब्रिज द गैप. तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा प्रोटीन, मतलब मेरा बॉडी वेट उस टाइम पे अराउंड 148 पाउंड्स था. तो पर पाउंड 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी मास, मसल मास. तो मैंने कहा ओके चलो 100 मैं कितना लेता हूँ. आई वॉज टेकिंग लेस देन 100, मे बी 75. तो मुझे रियलाइज हुआ मुझे मोर प्रोटीन की ज़रूरत है. तो कैसे आएगा. तो अगर मैं एक स्कूप और प्रोटीन का ऐड करता हूँ तो 25 ग्राम प्रोटीन और ऐड हो गया. व्हाट एल्स आई कैन डू. तो मैंने इस तरह काइंड ऑफ अपनी डाइट में एडिशन शुरू करे कि ये चीज़ करने से मुझे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा. आई थिंक माई डाइट, आई वोंट से कि मेरी डाइट परफेक्ट है. मेरी डाइट में अभी भी काफ़ी खामियां हैं. अगर मैं कुछ ऐड कर सकूँ तो मैं मोर फाइबर ऐड करना चाहूँगा. बट आई हेट ईटिंग सैलड. बट अगेन बट मैं ऐड करना मैं एक्चुअली आज लेकर आया हूँ इसीलिए. तो मैं कि यही चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि सैलड अपनी उसमें कि मोर फाइबर एंड मे बी मोर फर्मेंटेड फूड, प्रोबायोटिक्स एंड समथिंग. But otherwise, I believe my diet is not bad, but still it has scope for improvement. Okay, that's good. Have you ever trained people for rock climbing? Actually, yes. Like, I wouldn't say trained, but you learn from your own ways also. First time when I was in like Delhi में IF में मैं था, तो वहाँ पे कुछ अंधे बच्चों का ग्रुप आता था. तो it was so motivating. और उनसे आप ट्रेन करते नहीं हो, आप सीखते भी हो. मतलब आप सोचिए आप चढ़ रहे हुए हैं और आपको पता भी नहीं कि अगला होल्ड कहाँ पर है, और आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ फीलिंग लेके सोच रहे हैं. और मैं ऐसी सिचुएशन में अगर आप मुझे बोलोगे इस लेवल भी करने के, मैं भी डर जाऊंगा. और वो पेशेंस पे जब कर रहे हैं तो फिर हम उनके साथ हम उनको बिले करते थे, मतलब उनको रस्सी से पकड़ वो करते थे, खींचते थे. तो रस्सी का सपोर्ट इसलिए होता है ताकि वो गिरे ना जमीन पे. ये एक सपोर्ट सिस्टम होता है. ये नहीं कि हम उन्हें खींच रहे हैं, बट इसलिए होता है कि वो गिरे ना. तो जब मैंने उनको देखा तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें. ठीक है कि
ये लोग, तो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, मेरी आदत थी कि मैं दोस्तों पे चिल्लाता था, अरे राइट में देख, राइट में, तो मैं उसी तरह से उनको बोलता, मुझे किसी ने टोका, उन्होंने बोला क्योंकि वो अंधे हैं तो उनकी सुनने की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो डर सकते हैं, तो मेक इट काम। तो ये एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था जो मैंने सीखा। और यहाँ भी मैं बहुत लोगों के साथ, मतलब क्योंकि मुझे हर कोई आके सलाह देता है एक्चुअल में, इट्स ट्रू। और इसी तरह मेरी दोस्ती हुई है लोगों से, कोई भी आता है, मतलब कोई भी लड़का लड़की, अरे ये प्रॉब्लम तू कर रहा है, मेरे ने देखा तू यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी यही स्ट्रगल कर रही थी, मुझे भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने ऐसे होल्ड किया। कभी बात नहीं हुई लोगों से, कभी मतलब हाय भी नहीं बोला होगा, आके अपने आप से ही हेल्प करने लग गए और दोस्त बन गए, एंड नाउ वी आर हैविंग अ कैजुअल चैट एंड कन्वर्सेशन। तो हाँ, मैंने ट्रेन किया भी है, ट्रेन हुआ भी हूँ, क्योंकि मुझे कईयों ने हेल्प करी है, तो मैंने भी कईयों की हेल्प करी है, तो इट्स अ डिफरेंट कम्युनिटी, इट्स अ गिव एंड टेक, एग्जैक्टली, राइट? परफेक्ट। आपको लाइक एज यू से लाइक रॉक क्लाइंबिंग आप इतने टाइम से करो, डज इट आल्सो हेल्प यू इन प्रोफेशनल लाइफ इन एनी वे? लाइक इन प्रोफेशनल लाइफ यस, गिव मी अ माइंड ऑफ पीस। जैसे अभी इंटरेस्टिंगली मैं अभी इंटरव्यूज़ दे रहा था रिसेंटली, तो मैंने अपना लास्ट ऑफर जो नेगोशिएट किया है, तो मैं बात ही कर रहा था, तो वो जो मेरी मैनेजर है, अब वो मेरी मैनेजर होगी, नॉट फ्रॉम दिस नेक्स्ट वीक लेटर, तो मैं जब भी उससे बात करता था, मैं हमेशा फॉर्मल में होता था, शर्ट पहन के, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम नेगोशिएटिंग। एंड एक टाइम तो ऐसा हुआ कि हम दिन में 2 बार बात कर रहे हैं, बिकॉज इट वॉज अ नेगोशिएशन गोइंग ऑन, तो मैं कैजुअली ना टी शर्ट पहन के, मेरा बैग पैक है और मैं निकलने वाला हूँ, मैं उस फेस पे था, तो उसने बोला, अरे सुमित, सो ओके, सो यू आर नॉट इन फॉर्मल राइट नाउ, ऐसे पॉइंट किया, शी इज कूल, आई लाइक या आई वाज अबाउट टू गो फॉर रॉक क्लाइंबिंग, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस कन्वर्सेशन टू गेट ओवर, एंड कहती अच्छा, कहती वेयर डू यू डू, लाइक ऑल दिस कैजुअल कन्वर्सेशन, बट या इट हेल्प्स मी अ लॉट। और फिर मैं कहा हाँ मैं करता हूँ, तो फिर बातें हुई, फिर फाइनली उसी बीच उसने मुझे ऑफर भी किया, मतलब द जॉब ऑफर, एंड या थैंक यू सो मच, या एंड या आई एक्सेप्टेड इट, बट इट पुट यू इन अ place also that okay, he's a rock climber, so yes, and it gives you peace of mind, definitely. Like I've never been stressed because of the work. It's like okay, जो भी stress होगा ना मैं workout पे निकाल दूंगा, and that's it. So it's a good thing. अब like I also believe कि जब आप rock climbing करो, as you said, it's a problem solving. It also helps you at your work, like being organized and being focused at the work. You're not distracted. As you said, like rock climbing needs a lot of attention. Yes. Like you're also focused on work, and I think so that is also the thing like other person sees in you. Okay, rock climbing not like कोई common लोग नहीं करते हैं ना. It's a very very few people do it if they do. I think so that is also one of the things maybe she has focus. I think so you look like that very focused person. हाँ actually no focus हमेशा रहता भी, और actually मैं जिस तरह का इंसान हूँ, अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ ना, और अगर मुझे किसी वियर्ड जगह से नेविगेट करना है, आई विल नॉट टॉक टू यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जस्ट डोंट टॉक टू मी, लेट मी ड्राइव, I cannot do multiple things. Lot people can do. I'm not. I think so. Women only is the only multitasker. Yeah. So they say multitasker. I would say you cannot focus. I'm sorry, it's a joke. Yeah, okay, that's okay. Yeah. So it's a thing that for me, I need proper focus. Like मेरे को focus चाहिए. Same goes with work. Same goes with rock climbing. If I'm focusing on something, don't divert me. So yes, it does help me in the work also. मैं focus कर रहा हूँ, तो मेरा focus सिर्फ work पर है. मैं divert नहीं होना चाहूँगा. मैं नहीं चाहूँगा कि मैं phone check कर रहा हूँ या कुछ और दरवाजे की नॉक. I want to dedicate my time. इससे मेरी productivity भी बढ़ती है, क्योंकि मैं अगर 10 चीज़ें साथ कर रहा हूँ, तो practically मैं एक चीज़ भी नहीं ठीक से कर रहा. तो मैं because I just want to do one thing, clear it, and that's it. Get out of the list. Like take that out of the list, and that's it. Yeah. I understood. I understood. That's great. I want to know, like, is there any levels of like in this rock climbing as well? Yes, there are few, like many levels. So when you start from the basic, like basic is something I wouldn't say like kid level, because a lot of elders starts from that level. Like even I started from that level in my mid-20s. Okay, so I wouldn't say that's specifically for kids. No, it's for anyone. It does not matter. And to be honest, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपसे अच्छे क्लाइंबर होते हैं. कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है. ठीक है, बच्चे बहुत अच्छी जल्दी सीखते हैं. ठीक, तो द बेसिक जो सबसे लोअर ग्रेड जो कहते हैं वो है 5A. जो तो ऐसा होता है 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C. सो इट गोज अप टू 9C तक जाता है. सो 5A से लेकर 6A, 6B तक आप बेसिक लेवल पर हैं, और लोग यहीं पे मैं बोलूँगा 70% लोग इसी लेवल पे होते हैं.
रॉक क्लाइंबिंग में। वो स्टार्ट करते हैं बट वो एक लेवल तक पहुंचते हैं, बट 6B के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाते। 6A 6B 6B के बाद आप एक लेवल पे शुरू होते हैं, मतलब तब ऐसा होता है कि आपको इंजरी हो सकती है, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस है, तो आप वो डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं। इससे पहले ये है कि हाँ इट्स डिफिकल्ट बट स्टिल आप काफ़ी हद तक सेफ हैं, अगर नहीं कर पाए तो आप नीचे आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली मैंने इससे बताया कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं 6B तक के नीचे आ जाते हैं। सिर्फ 50 लोग दुनिया में होंगे जो 9A या उससे ऊपर होंगे पूरे वर्ल्ड में, और 1 और 2 लोग ही हैं जो 9C पर हैं। 9C ऐसा है कि किसी भी रॉक क्लाइंबर के लिए अगर 9C करना इट्स लाइक अ ड्रीम। और इनफैक्ट ये एक वीडियो भी है, 2 वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप रॉक क्लाइंबर से पूछा गया कि आपको ओलंपिक गोल्ड पिक करना पड़े या 10A जो आज तक है भी नहीं वो, तो सब ने बोला नहीं हम 10A ही करेंगे। कहते हैं ओलंपिक गोल्ड वाले बहुत सारे होते हैं बट 10A वाला कोई नहीं, जैसे 9C वाला एक ही इंसान है। और अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं कि वो मेरी लाइफ की इकलौती यूट्यूब वीडियो है जो मैंने बिना फॉरवर्ड करे देखी है, मतलब मैंने पूरे 25 मिनट की वीडियो एक टाइम भी फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने एक सेकंड देखा उसका, तो वो इकलौती वीडियो, बिकॉज वो इतना चैलेंजिंग है कि आपको लगता है कि हाउ कैन ही डू दैट थिंग। Got it. So, like, if you don't mind me, what is your level? You're at what level right now? So right now I am between 7B and 7C. So अगर मैं 8 के मेरा मतलब 7B and 7C is like at zone level or like state level. It's a good grade. Like I come in like, I won't say I come in like top 25 or 20% of the population. That would I say. But again जैसे जैसे इसके ग्रेड बढ़ते जाते हैं वो लोग बहुत कम होते चले जाते हैं। हाँ, I want to share my story. Like, I went with my parents. उनकी 25th anniversary से we went to Thailand, एक बुद्धा टेम्पल था ना, तो मम्मी कहती ऊपर जाना ना, like to get the like वो पूरा like it's a mountain। हमने स्टार्ट की ना like climbing स्टार्ट करी ना, and the stairs was like this, and मैंने देखा मैं तो नहीं चढ़ रही हूँ। I told my mom I'm not like my father, like I can't do it। पहले तो धीरे धीरे करके ना वो ना स्टेयर्स ऐसे हो गए और लाइक 2-2 फीट की ना ऐसे इतनी बड़ी बड़ी स्टेयर्स, यू हैव टू क्लाइंब। मेरी मम्मी तो बन गई बंदर, ना शी इज लाइक क्लाइंबिंग लाइक दिस, लाइक इट विल हेल्प यू, आई डोंट नो इफ इट डज हेल्प इन क्लाइंबिंग और नॉट, एंड शी गॉट अपस्टेयर एंड मेरे मम्मी पापा इतने तो मैं पीछे, okay they both are very active and I'm not that active to be very honest। okay मैं ऊपर मिड तक गई, मैं थक गई and my dad came down, he said मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगा, तू गिर ना जाए पीछे। I'm the only thing, he was like so protective about me कि मैं पीछे गिर ना जाऊं, and you क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर लगता है, I don't know how you do that, but hats off to you। I can't even imagine doing it on the regular basis क्योंकि मेरी वाट लग गई थी वो करते हुए, and I remember they were like 1,260 steps। oh wow। And you have to go, it was worth it, the view was worth it, but the thing is that वो जो इतनी बड़ी stairs थी, it was very very, और कुछ छोटी थी, मतलब it was like very calculative, you have to be very calculative towards, और कुछ था भी नहीं पकड़ने को। अच्छा। और एक सी सिर्फ वो थी, and पीछे जंगल था, like there was like forest, it was very like dangerous, but like everybody was motivating, जैसे आप बोलते हो ना, like you are so social, and when you in gym so you don't have, you have headphones, you don't interact, right। but when you're doing in like a climb and you're interacting with, सब push कर रहे थे, go for it, yeah, go for it, and the view was amazing। I like literally had, I can't believe that you do it, I can't do it, I really can't do it। that's amazing। sorry, go ahead। No, actually because one of my climbing friend's wife, they both went to actually Thailand, और उसने भी मुझे यही बोला, कहती हम मंदिर गए थे, कहती अच्छा, कहती अगले दिन स्विमिंग पूल पे हम बतख की तरह चल रहे थे। ठीक है, कहती हमसे टांगे भी सीधी नहीं हो पा रही थी क्योंकि, और ये एग्जैक्ट वर्ड, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी, हमने एक दिन तो कर लिया, अगले दिन चला भी नहीं जा रहा, बतख की तरह चल रहे हैं। उसके बाद फिर पूरा जो ट्रिप था उसकी तो हालत खराब हो गई, फिर नहीं गए। ऊपर तो चढ़े एंड नीचे वक्त तो लाइक इट वाज लाइक, एक तो बहुत ज्यादा लाइक गहरा था ना, यू गेट लाइक स्केयर्ड, एंड और आपका जोर लगता है ज्यादा नीचे उतर तक यहाँ पे, एंड my legs were like shaking, I couldn't walk, I don't like, Papa please pick me up, I can't walk, it was like too time, बहुत exhausting हो जाता है। इसके लिए actually you have to be very disciplined if you're doing rock climbing for sure। True। we have talked about a lot about rock climbing। इसके अलावा like what passion do you
like share in your life? Like what else you have which gives you bliss of life? For me, like rock climbing is something different, but apart from this, if I see myself, because there used to be a time I used to watch movies, और मुझे लगता था movies देखना ना life की achievement है, और TV series. अच्छा. I'm telling you, a lot of people think still they think right that, now. yeah, so that was loser phase of my life. Okay, but मैं ये नहीं कह रहा कि कोई, बट हर किसी की अचीवमेंट होती है. अब मुझे अगर मैं टाइम में वापस जा सकूं तो मैं बोलूँगा यार मैं क्या कर रहा हूँ. मतलब मेरे दोस्तों ने 1 या 2 पिंक पैंथर आई थी वो देखी थी. मैं उस टाइम पे सोचता था 1-2 मैं 7 देखूंगा जो सारी 60s 70s में रिलीज हुई, तो मैं सब कुछ देखता था. मुझे सिर्फ मूवीज देखनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मूवी या टीवी सीरीज करना था. बट अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अगर सीरियसली मूवी चल भी रही हो तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आता. अब वो चीज़ें, आई थिंक आप जैसे ग्रो करते हैं लाइफ में, चीज़ें के मायने बदल जाते हैं. ठीक है, आप सेम चीज़ इंटरेस्ट नहीं रह पाता, और मे बी आप बहुत, आई वुड से नॉट विजडम इज अ रॉन्ग वर्ड, बट आपका वो सेंस ऑफ कनेक्शन डिफरेंट हो जाता है. माइंडसेट चेंज हो जाता है. एग्जैक्टली, या. तो अभी जैसे मैं पहले पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. मतलब कोई लोग, मेरे दोस्त बात करें, हम यार मैंने ये नोवेल पढ़ा था, मैंने ये बुक पढ़ी है, लाइक ओ वाओ कितना इंप्रेसिव है. और मेरे पास हैरी पॉटर पढ़ी थी, 5 साल पढ़ी थी, मैंने एक पेज नहीं पढ़ा उसका. ठीक है, नहीं 1-2 पेज तो पढ़े थे, बट आई कुडंट फिनिश छोड़ो, मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया होगा. ठीक है, आप मुझे पूछोगे तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, और मैं Just give a high five. I have the same story like that. Okay. It is exactly like that. I was not into books. Yeah. When you start, acknowledging कि यार इससे growth नहीं मिल रही है ना कुछ, you start Right. studying. I think Right. knowledge is the best thing to have growth in the life. True. Yeah, please continue No, your story. जैसे आपने, और जो which kind of book you I like psychology books, to be Okay. honest. I love to read about psychology, human behavior, how to read the body language of the person when they're like entering the room. I'm very intrigued into that, so I love those books. that kind of my so that is kind of my second favorite topic. Okay. First one is I read about lot about finance and everything, and finance in terms of example, कोई example देता है कि अच्छा ये हुआ था इस तरह से connection में. ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि how you can make your finances better. And psychology, yes, because जैसे मैंने अभी हम देखते हैं कि AI का टाइम आ चुका है, कुछ टाइम बाद ये चीज़ें ना, ये ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन साइकोलॉजी ही मैटर करेगी. इनफैक्ट मैं जो नेक्स्ट बुक मैंने 2 बुक्स अभी भी जो मेरी नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है, एक तो मुझे मेरे फ्रेंड ने रेफर करी थी, और मेरे को पहले ही उसका, वन इज 48 लॉज ऑफ पावर. I have it. You have it. And second is, I've read that book, but I'm going to read it again. That is Emotional Intelligence. There's also another book which I love it, Power of Subconscious Mind. I read that one. I love that book, and I feel like it teaches you a lot. And I'm also a big believer in manifestation. Right. So I'm very very fascinated about that. So वो पहली बार वो बुक इसलिए भी रीड करी थी कि it talks about it, how you can change your reality by just having that kind of a thought. True. So आपने कभी have you ever जब आप as I said about, आपने बोला कि बचपन में you started have you ever आपने कभी सोचा था I'll do the rock climbing? No. पहले से सोचा था कि मैं ये कर रहा हूँ, जैसे you have a list ना 30s, आपकी 30s लिस्ट थी कि आपने ऐसी चीजें करनी है. वो you already visualizing कि मैं ऐसे करूँगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. रॉक क्लाइंबिंग था, बुक रीडिंग तो कभी भी नहीं था. ठीक है, कि मैं कभी बुक रीड तो करूँगा ही नहीं. मुझे लगता था बुक रीडिंग इट्स मोर अबाउट कि आप ना, जब आप छोटे होते हो, जब आप यंग होते हो, तो आपको लगता है कि हाउ कैन यू मेक योर लाइफ एक्साइटिंग. एंड सब प्रॉब्लम क्या होती है, इट्स नॉट बैड. प्रॉब्लम इज यू वांट टू मेक इट एक्साइटिंग फॉर द अदर पीपल, so that other people get impressed. This is so true. Yeah, and as you grow old, you stop caring about other people's opinion, and it comes with wisdom. Actually, it's not even, some people even 70 they care about other people's opinion, right? So it's a wisdom you achieve, that you stop caring about other people's opinion and you do what you like because you like that or love that thing, right? इनिशियली जो भी मैंने किया है, काफ़ी चीज़ें मैं इसलिए करता था क्योंकि देखिए, आप भी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि आप सच में सक्सेसफुल होना. उसके बाद ऐसा लगता है, जैसे हमारे कहावत है ना, शर्मा जी का बेटा तो वो कर गया, आपने क्या किया. ठीक है, आपने क्या किया. कंपैरिजन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है. कंप्लीटली एग्री. तो वो आपको अचीव. बट अब ऐसा है कि मुझे किसी शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन नहीं करना. मेरी खुद की अचीवमेंट है जो मैं हैप्पी हूँ, और मैं वो करता हूँ जो मुझे पसंद है. ठीक है, अगर आपने मुझे कुछ दिया कि you should do this, if I like it I'll do it, if I don't like it,
मैं हाँ कर दूंगा, मैं करूंगा कभी नहीं। और मैं हाँ भी इसलिए करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। मैं आर्ग्यू करना पसंद नहीं करता, मैं काफ़ी चीज़ों पे बैकआउट कर जाता हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू विद पीपल, एंड आई हैव रीच्ड द स्टेज इन माय लाइफ दैट इफ समवन tells me that 2 + 2 is 87, I'll say yes, you're right and move on. That's मैं argue नहीं करना चाहता कि ठीक है। I think so, especially I think so late 20s or after 30s, you see like you are just so involved in yourself that you do not actually want to involve in the argue. अब छोटे young होते हैं ना, गुस्सा ज़्यादा होता है ना, more aggressive. I think so after a set of a age you're being more calm. True. And I think so that also helps a lot in the life in general life कि you're just like ठंडा हो जाता है बंदा. So I think so it's a very good thing. I want to know like other than rock climbing, what other adventure sport you did, like you tried? Okay, I've tried few actually. So first thing I tried was skiing. So रॉक क्लाइंबिंग के फ्रेंड्स के सर्कल के साथ ही वो कहते चलो हम स्कीइंग जाते हैं हर साल, मैंने कैलिफोर्निया में भी किया, तो दैट वाज इन इंडिया, तो कहते चलो गुलमर्ग चलते हैं। तो मैं भी चला गया ट्रिप में, मैं चलो। तो 4 लोग थे, मेरा एक फ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड और एक दूसरा लड़का था और मैं, हम 4 लोग। हम दोनों ने कभी नहीं करी, मैंने और एक दूसरे लड़के ने कभी नहीं करी। वो आता है बोलता है अरे तो हम बेसिक लेवल पे आपको करनी चाहिए, कहता है अरे कुछ नहीं है चलो ऊपर चलो। हमने कहा ठीक है, हम ऊपर गए और उसने हमें एक गाइड पकड़ा दिया, एक लोकल, वो गाइड भी नहीं था, वो लोकल कोई आदमी था ऐसे ही। तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, स्की में गिर रहे हैं और शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं लगभग 4:30 या 5। तो हमने से पूछा तो सब कुछ बंद हो चुका है, गंडोला होता है बंद हो चुका है। हमने कहा नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? कहता 10 मिनट। तो हमने कहा नहीं हम तो पहली बार कर रहे हैं। तो कहता आधा घंटा। हमें 3 घंटे लगे नीचे। I swear not making this up। एक बार हम एक जोन में, तो हमने जब पहुंचे हमने देखा ढलाल है, हमने स्कीज रखी, उस पर बैठे और नीचे जा रहे हैं उस पर स्लाइड करते करते, ठीक है। और क्या होता है कि जब आप पहाड़ों में होते हैं शाम का टाइम, शाम बहुत जल्दी होती है, अंधेरा है, आपको कुछ नहीं पता। मतलब हमें तो लगा था हम आज तो भगवान से ही मिलेंगे, ठीक है। और इत्तेफाक और क्या हुआ, हम किसी तरह पहुंच गए नीचे। जब पहुंचे वो जो गेट था वो भी बंद हो चुका है। Oh my तो God. फिर वो हमें एक लंबे रास्ते से लेकर गया, और जो मेरे दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड उस टाइम पे थे, वो वहां पे बाहर जो मेन सड़क थी खड़े होकर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया। एक रैंडम आदमी गाइड से पकड़ा दिया था इन्हें, कहीं वो इन्हें किडनैप तो नहीं करके ले गया, ठीक है। और ये एक लाइफ स्टोरी हो गई कि हमने जो किया कि हमने, और उस जिसके साथ मैं लड़के के साथ आया उसको भी मैं अच्छी तरह जानता नहीं था, हम दोनों मतलब एक तरह से 1-2 बार ही मिले होंगे पहले। तो ये इंसिडेंट बहुत एपिक था। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड एवरीथिंग। फिर सेकंड टाइम गया स्कीइंग के लिए, सेकंड टाइम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। मतलब सेकंड टाइम में ऐसा था कि मैं थोड़ा ट्रेन होकर गया था। प्रॉब्लम ये हुई कि सेकंड टाइम में लास्ट दिन में मेरे आई ब्रोक माय लेग। Oh my God. या एंड देन आई गॉट स्केयर्ड ऑफ स्कीइंग। उसके बाद मैंने कहा आप स्कीइंग तो नहीं कर सकते। देन आई स्टार्टेड डूइंग स्नोबोर्डिंग। Okay. या बिकॉज स्कीइंग में क्या होता है, आपके 2 पाँव अलग जगह पर है, एक धंस गया दूसरा मूव कर रहा है, तो इस वजह से मेरा टांग टूट गई थी। तो मैंने कहा बोर्ड में एटलीस्ट एक, बोर्ड की भी अलग रिस्क है, बट ठीक है मैंने वो स्नोबोर्डिंग करी एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। आई डिड फॉर लाइक 7-8 years एंड 1 or 2 years मैंने मतलब 1 या 2 साल स्कीइंग और 6 साल के करीब मैंने स्नोबोर्डिंग करी। बहुत मतलब मैं हर साल जाता था, ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने रिवर राफ्टिंग भी कर रखी है, जो मुझे लगता है कैजुअल स्पोर्ट है, जो हर नॉर्थ इंडियन करता है। या कि I also did it. एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना, ऋषिकेश जाओ रिवर राफ्टिंग करना। एग्जैक्टली बस, तो हर नॉर्थ इंडियन करता है। बट मैंने एक और चीज करी है, कायाकिंग, विच आई फाइंड वेरी डेंजरस। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद मतलब 3 दिन का मैंने कोर्स किया था, और हर मॉर्निंग का मकसद ये होता था शाम तक जिंदा बचना है, ठीक है। मतलब You have to maintain a balance, right? मेंटेन ए बैलेंस। और आप ना नाव में बैठे हैं, ऐसी शेप की नाव है, और जब वो पलट सकती है, वो पलट गई तो आपके ऊपर बोट है, तो आप वापस कैसे आओगे? और यहाँ पे करना आसान है कनाडा में, वहां पे नदी बह रही है और वो बहुत फ्लो से बहती है, ग्रेड 4 लेवल के भी रैपिड होते हैं, उसमें तो आप वर्लपूल वगैरह में फंसना एक आम बात है। मतलब मैं एक टाइम पे तो मैं ऐसा था कि मैं हर बार मतलब किसी तरह बचा, उसके बाद मैंने कसम खाई मैं कभी नहीं करूँगा। बट मैंने फिर यहाँ पे की कनाडा में, बट कनाडा में स्टिल वाटर है, डीप ज़्यादा नहीं था, तो मेरे को आसानी रही, तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
I still don't think कि मैं ऋषिकेश जाके कर सकता हूँ. Oh, मैं that's a life changing. I think kayaking अभी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं. Like lot of people, Yes, lot yes. of people do, right? And I understand it's fun actually. Yeah. It's safe, it's fun. In fact, मैंने भी सोचा था शायद समर में करूँगा. But unfortunately कुछ circumstances ऐसे थे मैं नहीं कर पाया. But next summer 100% I'm looking forward to it. Sure. Yeah. Thank you so much, Sumit, for coming. I thoroughly enjoyed the conversation. I had a lot of fun. I So know did I. podcast like the people who are watching will love it. And thank you so much for your presence. I so appreciate it. I have a little bit of gift for you. We give it to every guest we have. So this is a Bliss of Life, photo of a bliss. And we give it to every guest we have in our show. So thank you so you. much for coming. This is like a memory for you, so that you remember me. I You don't will not forget forget about it. me. For So sure. thank you so much for that. Thank you so much for Thank you. having us and coming to the show. Thank you so much. Thank you so Lots of love, guys. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. Thank you guys for watching this episode. I hope you guys enjoyed it. आपने बहुत कुछ सीखा होगा and I hope the things which the guest shared has touched your heart because मेरे को तो बहुत मजा आया and I hope you will learn a lot of things about this from this episode and thank you so much for watching and if you have any suggestions please comment down below and please subscribe your channel, share with your friends, with your family. I would really appreciate it. Thank you so much for all the love you have given to this channel, to me, to my team. We love each one of you. So thank you so much for watching. Bye guys, take care. We'll see you on the next episode. Thank you guys, take care.